أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nurturing Iman in our children. So the first topic that we're touching is Aqidah, Iman, and Ihsan. The three essential components of Iman, as stated أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. So Islam submission then is only one part of Iman. Ibn al-Qayyim rahimullah wrote that Iman is composed of the following components. तो ईमान के अंदर इस्लाम क्या है? इस्लाम जो है तस्लीम करना है. यानी इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, the 5 pillars of Islam that we have. Number 1 is shahada, number 2 is salah, number 3 is saum, number 4 is zakat, number 5 is hajj. When we enact these actions, we are under the state or under the state of Islam, known as Muslim. Iman are 6 articles of faith. Iman are 6 articles of faith. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa qadr khayr min shar. तो 6 चीज पे जब ईमान ले आता है, when we completely believe in these 6 articles of faith, we believe in Allah Azza wa Jal, we believe in His angels, we believe in His books, we believe in His messengers, we believe in the Yawm al-Qiyamah, and we believe in the degree which is good and bad degree is both from Allah subhanahu wa ta'ala. हमारे तकदीर में अच्छा होना बिइज़्निल्लाह है, बुरा होना बिइज़्निल्लाह है. दोनों चीजें अल्लाह ताला के हुक्म से है. It is very important me as a person to believe in these fundamentals of our fundamental basis of our religion, which is Iman, Islam, and Ihsan. What is Ihsan? Ihsan is to worship Allah Azza wa Jal as though you see Him, or you worship Allah Ta'ala as though He is seeing us. This is Ihsan. जब हम इन तीनों चीजों पे खड़े उतर जाते, when we believe in these 3 fundamentals of our deen exactly मैं देखिए मैंने कह भी दिया. तो what is deen? What is the meaning of deen? Deen means the way of living. Deen is the way of living. How can I know the way of living according to our religion? According to our religion. So Jibril alayhi salam came to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and he asked the question, Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, what is Iman? What is Islam? What is Ihsan? And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam answered all of these definitions, the meaning of these 3, Iman, Ihsan, or Islam. Then Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said कि this is deen, ये हमारा दीन है. तो दीन में क्या क्या आता है? हमारा दीन में हमारा ईमान है, दीन में हमारा इस्लाम है, दीन में हमारा एहसान है. एहसान. तो दीन के अंदर अगर ये तीनों चीजें आप इसमें यकीन आपका आ गया है, that is going to strengthen, this is going to strengthen our अकीदा. तो जब आपका ईमान मजबूत है, इस्लाम मजबूत है, एहसान मजबूत है, naturally आपका अकीदा भी मजबूत हो जाएगा. यानी now you're going to start working with complete क्या कहते हैं, affirmation, with complete यकीन कि मैं जो भी कर रही हूँ अल्लाह ताला के हुक्म से कर रही हूँ. ठीक है. तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसके बारे में? हमारे दीन के बारे में, हमारे इस्लाम के बारे में. हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये. अगर हमें इतना आ गया, अब हम जो क्वालिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, और वो ये है कि हम समझें कि
सहाबा इकराम ताबे ताबईन ने क्या हमें समझाया है इस्लाम और दीन के ईमान के ताल्लुक से। तो इब्न अल क़य्यिम रहिमहुल्लाह wrote that ईमान is composed of the following components। ईमान के अंदर ये 5 चीजें हैं, अगर ये 5 चीजें होंगी तो फिर हम लोग जो है फर्दर क्वालिफाई कर सकते हैं दीन में आगे चीजों को समझने के लिए। Having the knowledge of what नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught। अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो बच्चों के साथ नरमांगी हो, चाहे वो सख्ती हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो जो भी हो, जो भी डीलिंग्स हो, क्या ये तरीके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों की तरह है? हम इनको इतना भी पैम्पर ना करें अच्छा बन के कि ताकि बिल्कुल वो आप बेहाल हो जाए, आपके हाथ से बाहर हो जाए। हम इतनी भी सख्ती ना करें कि बिल्कुल वो जो है एक एक्सट्रीम पे चले जाए। एक बीच का दायरा होना चाहिए, प्यार भी दीजिए, मोहब्बत भी दीजिए और सख्ती भी दीजिए, ये भी जरूरी है। गलत है तो गलत है, सही तो सही है। ये नहीं कि गलत करे तब उस पर हंसी उठाए और जब वो अच्छा करे तब उसके ऊपर जो है कुछ तंज करे, नहीं। ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, वी कैन एक्सपेक्ट आवर चिल्ड्रन टू बी काइंड ऑफ मुस्लिम्स दैट वी एज पेरेंट्स आर नॉट। अगर हम माँ बाप होके उस कैटेगरी के ईमान पे नहीं है, इस्लाम पे नहीं है, एहसान पे नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारे बच्चों में चीज नहीं आने वाली। तो जब आप सच बोल रही हैं, जब आप ईमान पे हैं, जब आप झूठ से नफरत कर रही हैं, जब आप किसी के हक को नहीं मार रही, जब आप कोई गलत काम नहीं कर रही हैं, ऑटोमेटिकली यही चीज अपने बच्चों में आप डालेंगी, क्योंकि ये चीजें आपके अंदर हैं। और जब आपके बच्चे झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज इट्स वी आर सीइंग it's very hard to sink in, but then yes, children they come up lying and then they get habituated because you see amongst the parents somebody may have this kind of bad trait कि उनके अंदर आदत थी झूठ बोलने की, आदत थी धोखा देने की, खयानत की, तो वो कहीं ना कहीं जीन्स में होती है, डीएनए में होती है वो। और फिर वो चीजें आती हैं बच्चों के अंदर, जो हम क्लियरली देखते हैं कि बिल्कुल कुछ बच्चों की आदत है, बिल्कुल हर बात पे सीधा झूठ बोलते हैं, कुछ कहते नहीं, एंड यू आर अंडर अ शॉक कि या अल्लाह, ये बच्चे से 5 साल का है, 6 साल का है, 8 साल का है, कितनी फहाशी से झूठ बोल रहा है ये। यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि उनके अंदर, वालदेन के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके की इल्म नहीं था, वो दीन की, वो हदीस की, वो सीरत नहीं थी। लिहाजा बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप का देखा देखी झूठ बोलते हैं। अच्छा, अक्सर ये भी देखा जाता है कि माँ बाप में कोई पर्सन पूरे वक्त उनके साथ साथ नहीं है, जो कोई नेगेटिव एक मेंबर होता है हमारी फैमिली में, वो उनके साथ साथ नहीं है, इसके बावजूद उस आदमी या उस औरत की संगत ना होने के बावजूद बच्चे झूठ बोलते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि बच्चों के अंदर, उनके डीएनए में ये खराबी आ चुकी है, ये खराबी आ चुकी है। और अगर हम इस खराबी को उनको समझा के, बता के, अल्लाह ताला की तरबियत के जो तौर तरीके को नहीं बता के ठीक करेंगे, तो ये एक जो हम पढ़ रहे हैं ना, फी कुलूबिहिम मरद फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, फिर ये मर्ज जो होगा दिल में झूठ बोलने का, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और फिर इवेंचुअली ये होगा कि भाई, जो बच्चे इस तरबियत में नहीं है, जब बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते कि झूठ बोलना हमारे लिए गलत है, फिर वो अपनी झूठ बोलते बोलते फिर तमाम मुश्किलें पड़ने लग जाते हैं, परेशानी में ढलने लग जाते हैं, बुराइयों में पड़ने लग जाते हैं, और फिर से उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उसका अंजाम उनका बहुत दर्दनाक होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि माँ बाप के अंदर दीनी इल्म होना, सच और झूठ का फर्क जानना, हदीस के तरीकों पे चलना। अगर मैं अल्लाह ताला से डरूंगी तो कहीं ना कहीं ये डर हमारे बच्चों के अंदर भी है, क्योंकि वही चीज, वही बात होगी, वी कैंट एक्सपेक्ट आवर चिल्ड्रन टू बी द काइंड ऑफ मुस्लिम्स दैट वी एज पेरेंट्स aren't। Point number 2, having complete and firm belief in what Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam taught। अल्लाह ताला पे तो यकीन है, मगर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि आप लोग का, हमारा ईमान तब तक कामिल नहीं होगा जब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी तरजीह ना दे दें। यानी हमारे बच्चों से बढ़ के, हम हमसे बढ़ के अल्लाह ताला से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना कर लें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि उनसे मोहब्बत, उनसे मोहब्बत का मतलब है कि उनके तौर तरीकों से, उनके अखलाक से, उनके हदीस से, उनकी सीरत से, उनकी तरबियत से, उनके तरीकों से, उनके तौर से हम उनको, उनसे मोहब्बत करें। तो क्या हम उनसे उस तरीके से मोहब्बत कर रहे हैं? क्या हमारे खुलूस में, इखलास में, तौर तरीकों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक है? अगर है तो जाहिर सी बात है वो चीजें बच्चों में भी कहीं ना कहीं दिखाई देगी, और अगर नहीं है तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि बच्चे वही हैं जो माँ बाप होते हैं, ये याद रखिएगा। बच्चों में और किसी तीसरी, मैं ये हमेशा से कहती थी कि बच्चों के अंदर किसी तीसरी की सिफत नहीं आने वाली है, किसी तीसरे की खराबी या बुराई नहीं, ये जो हमारे अंदर है वही चीज बच्चों के अंदर क्या बनती है, बीज की तरह बढ़ने लगती है। अगर काटा तो काटा बढ़ेगा, अगर फूल है तो फूल बढ़ेंगे।
ये हमें देखना है, और जब हम कांटों को देख रहे हैं तो उन कांटों को काटने की कोशिश करें। वो नई चीजें क्या बन जाएंगी, फिर बाद में बहुत जहरीली बन जाएंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बार बार उनको मॉनिटर करें, बार, चाहे इसमें आपको सख्ती अख्तियार करना है, चाहे आपको जैसे भी, don't don't feel bad if you're being a little tough on them, because this toughness is going to make them better human beings for tomorrow. But if you're going to overlook their bad conducts or their bad habits, then that is going to become a bigger trouble for us later in the future. तो ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह मुस्तआन, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। रब्बना हब लना अज़वाजना व ज़ुर्रियतना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, कि या अल्लाह हमारे बच्चों को जो है नेक सालिहीन बनाए और इमामों के, मुत्तकियों के इमाम बनाए, आमीन। तो इसमें क्रॉस चेक हमें अपने आप करना है बार बार। इट्स अबाउट अस. How much knowledge do we have of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, what he taught us? How much firm and complete belief that we have in what Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam brought for us? Verbally professing one's belief in what he brought. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ने हमें जो बतलाया उसको हम verbally और in action में उसको बज़ाहिर कर रहे हों. Submitting to what he brought out of love and humility. ये जान के चले कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया है, अपनी मोहब्बत और अपनी बेइंतहा खुलूस से उन्होंने हमें ये चीज़ पहुंचाई. क्या चीज़ पहुंचाई? कुरान और सुन्नत. Acting in the accord in accord with what Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam brought both inwardly and outwardly. ये नहीं कि आप बस बाज़ाहिरी तौर से हिजाब पहनी हुई है, अबाया पहनी हुई है और लोग जुब्बा पहने हुए, दाढ़ी है, मगर सारी अंदरूनी हरकतें शैतानियों वाली है। अंदर ही अंदर झूठ बोलना, लोग का हक मारना, धोखा देना, गलत कामों की तरफ जाना, लोग के पैसे को जो दबा लेना, लोग के फला के जो है प्रॉपर्टी में जो है कुछ वो क्या कहते हैं, अ, यानी कोई गलत काम करना। तो ये तमाम चीजें, कितने लोग होते हैं जो सामने बड़े मुसलमानी, बहुत ही उनका दीनी उनका एक आउटलुक होता है, मगर अंदर से बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो यही है कि हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या हम जो इंटरनल है वो एक्सटर्नल भी हैं, या क्या हम सिर्फ इंटरनली एक तरह दिखा रहे हैं, एक्सटर्नली कुछ और दिखा रहे हैं। ये कौन है मुनाफिक है? ये जैसे हम सूरह बकरा में पढ़ रहे हैं कि एक एक मुनाफिक कौन है, एक आदमी डिसीट कौन करता है जिसके अंदर कुछ है बाहर कुछ और है। तो ये हमें बहुत ज़रूरी, हम अपने आप का जायज़ा लें, सेल्फ एनालिसिस करें कि क्या हम, जो हमारा अंदरूनी जो हमारी कैफियत है ईमान की, क्या वो बज़ाहिरी भी है, implementing it and calling others to this path. क्या मैं खुद इस पे अमल कर रही हूँ, औरों को इस रास्ते की जो है दावत दे रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी कि हम इन पांचों पॉइंट को दिमाग में रखें कि अती व अल्लाह व अती रसूल, आमनतु बिल्लाहि मलाइकती कुतुबी रसूली, की जो हमारे ईमान होना चाहिए हमारे नबी के ऊपर, जो कुछ हमारे लिए लेके आए हैं, जो कुछ भी उन्होंने हमें सिखाया उस पे हम अमल ईमान पे लेके आए। और ये हम जो कुछ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि उसको आजिज़ी से अपनाएं, मोहब्बत से अपनाएं। कितने लोग नहीं आजिज़ी से अपनाते, कितने लोग जो है कहते अरे जब देखो कहती है नमाज पढ़ने के लिए, जब देखो कहती है कुरान पे, जब देखो कहती है ये करो, जब कहती है कि ये नेकी करो, जब कहते देखो कहती है कि पैसे जो जमा किए उसको सदके में निकालो। जब तो लोग बच्चे और बड़े क्या करते हैं, उसको एक अजियत से लेते हैं, इसको अपने पर एक बोझ लेते हैं, इसको अपने लिए एक तंज लेते हैं। मगर एक मोमिन इंसान, एक मोमिन बंदा, एक मोमिन बंदी हमेशा खुशी खुशी आगे भाग के वो काम करेगी नेकी का, आगे भाग के नमाज पढ़ेगी, आगे भाग के सदका देगी, आगे भाग के वो रोजे रखेगी, आगे भाग के वो तिलावत करेगी, आगे भाग के वो जो है कुरान की जो है तरजीह देगी। तो ये वो लोग हैं जो नबी की लाए हुई बातों को मोहब्बत और आजिज़ी से अपना रहे हैं। ये नहीं कि उसको बोझ या उसको जो है नाउज़ुबिल्लाह ज़ालिक, उसको एक एक नेगेटिव उससे देख रहे ना। मेजोरिटी हमारे बच्चे ऐसे हैं। मेजोरिटी मेरे बच्चों को कुछ कही तो वो हर चीज में आह उह निकालते हैं दीन के ताल्लुक से। क्यों? क्योंकि हम भी एक वक्त में ऐसे थे, लिहाजा हमारे बच्चे भी आज वही कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी कि हम भी चीजों को पॉजिटिवली लें, उसको हम एक एक विद अ गुड वाइब्स, विद गुड एनर्जी उस चीज को हम एक्सेप्ट करें। तो यही चीज क्या होगी, फिर बच्चों में भी इनकलकेट होगी। The three essential components of Iman, as stated by many scholars, are belief in the heart. सबसे पहली चीज क्या है? ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। अकीदा कहाँ पे? फिल कल्ब, दिल के अंदर। अगर दिल दुरुस्त है सब कुछ दुरुस्त है, अगर दिल से नहीं सब बेकार है। पहले जमाने में और आज के भी वक्त में लोग दिल का जायजा लेते थे, तज़कियतुल कल्ब पे ध्यान देते थे, इखलास को देखते थे, क्योंकि दिल ही वो चिराग है जो पूरे जिस्म को रोशनी देता है। तो अगर दिल बुझा हुआ है, दिल में जो है खराबी है, अगर दिल में जो है सुकून नहीं, तो जिस्म के किसी हिस्से में सुकून नहीं होगा। जिसका जिसका दिल
साफ नहीं होता है ना, जिसके दिल में बहुत ज्यादा नुक्स होती, बुराई, उसका चेहरा देखिए, उसके चेहरे में भी अजीब सी, उसका चेहरा अजीब दागदार होता है, क्योंकि उसका दिल दागदार होता है। मगर जिसका दिल बिल्कुल पाक साफ शफाफ होता है, उसका चेहरा देखिए, बिल्कुल नूरानी चमकता हुआ साफ चेहरा होगा, क्योंकि उनका दिल साफ है, पाक है। तो ईमान का दिल में आना बहुत जरूरी है। और अगर हमारे दिल में ईमान है, यकीन मानिए आप सब सब चीज पे अल्लाह कंट्रोल कर ले जाएंगी, आप हर चीज को जो है मैनेज कर ले जाएंगी, हर सिचुएशन को आप डील कर ले जाएंगी, अगर आपके दिल में ईमान है। मगर अगर ये ईमान खोखला है, कमजोर या इसमें कमी होगी, तो आप हर सिचुएशन में जो है बहुत ज्यादा घबराने लग जाएंगी, हौलने लग जाएंगी, you wouldn't know how to react, you wouldn't know what to do, you wouldn't know what to voice out, and consequently everything is going to fall apart. So it's very important that you need to be calm. You need to be composed. You need to be careful. You need to be cautious. You need to be, you know, uh, you need to understand everything comprehensively with depth. अच्छा, ये मेरे साथ हो रहा है, क्या वजह हो सकती है ऐसा हुआ? मैंने कुछ गलत किया होगा तभी ये चीज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अच्छा, हाँ, मुझे याद आया कि मैंने उस दिन ऐसी कोई गलती की थी। या अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। या अल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरों वजअलनी शकूरों वजअलनी फी आइनी सगीरों व फी आइनि नासी कबीरों। दैट्स इट। अभी भी वो सिचुएशन आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, ओ दिस इज स्टिल बॉदरिंग माय हार्ट, व्हाट शुड आई डू या अल्लाह? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अखलिफ खैर मिनहा। Another, after another 10 minutes, again waswasa is coming, again something is bothering you. Instead of you reacting, instead of you getting into a bad situation, you're saying Allahumma la sahla illa ma jaltahu sahla wa anta taj'al shita sahlan. Again it's coming back and forth. फिर शैतान वसवसे डाल रहा है, फिर आप अपने आप को कंट्रोल कर रही हैं, सब्र कर रही हैं, कंपोज रह रही हैं, कह रही मैं नहीं इस दफे अपने आप को जो है तुम मरदना हो असफल, मैं अपने आप को खराब नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे मजबूत रहूंगी, साबित कदमी लाऊंगी, फसबिर सब्रन जमील वली रब्बिका फसबिर इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करूंगी मैं। अब क्या पढ़े हम दुआ? हस्बनल्लाहु ला इलाहा इल्ला तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, हस्बनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर, हस्बनल्लाह। That's it. When you work hard against a negativity that is trying to, break you down, but when you start acting against it with equal and opposite reaction, what's going to happen? Inshallah, ta'ala, you will overcome that dark side. You will overcome that whatever situation, evil situation which is coming in and fighting against you. तो ये कैसे हो रहा है? ईमान से हो रहा है, सीधी सी बात है। और ईमान कहाँ? दिल में है। वो दिल चिराग बन रहा है, वो दिल जो है ताकतवर बन रहा है, वो दिल आपका ढाल बन रहा है। किससे? उस तमाम नेगेटिविटी से जो आपको आके आपके ऊपर जो फोर्सेस अटैक कर रही हैं। सेकेंडली, प्रोफेशन बाय द टंग, वन स्टेटमेंट। ये नहीं कि बस हम अच्छा हाँ हमने सुना ठीक है देखेंगे, नहीं, उसको जुबान से भी और अमल से भी। ठीक है हम जो दुआएं पढ़ रहे हैं, ठीक है मैं पता है दुआ, मगर दुआ सिर्फ सुन लेना या देख लेना नहीं, दुआ को पढ़ना है। क्योंकि आपको पता है जब आप नमाज पढ़ती हैं और अगर नमाज में आप जुबान को नहीं हिलाती हैं, होठों को नहीं हिलाती, तो वो चीज सही नहीं है। तो जुबान का हिलना बहुत जरूरी है, जुबान से इसको बजाहिर करना बहुत जरूरी है। वन स्टेटमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ दीज बाय द बॉडी, वंस एक्शन। तो ये क्या है? शहादा है ना, दिल में कलमा शहादत को ले आना, फिर उसको जुबान से कहना। क्योंकि आप ये देखिए कि जब नया बंदा इस्लाम में दाखिल होता है, उसको शहादत पढ़नी होती है बुलंद आवाज में। इन्हीं के लिए नहीं हमने अपने दिल में पढ़ लिया बात खत्म, नहीं, they have to verbally voice it out. Secondly, when you want to make the what do you call आपको जब नियत करनी होती है कोई भी चीज, हमें इसको अपने दिल में नियत करनी होती है, जरूरी है, वरना आपकी वो आपका अमल जाया हो जाएगा। चाहे वो नमाज है, चाहे वो रोजा है, चाहे वो सही है, चाहे वो तवाफ है, चाहे वो उम्रा है, चाहे वो हज, अगर आपने नियत नहीं की सब बेकार है। तो दिल के अंदर ईमान ला के फिर उसको जो है बज़ाहिर करना, फिर उसको एक्शन से बज़ाहिर करना बहुत जरूरी है। These are the three essential components of ईमान। ये चीज कंप्लीट करेगी आपके ईमान को, कि दिल में यकीन है, जुबान पे वो कलाम है, और जिस्म से वो अमाल है। तो ये आपके ईमान को क्या कर देगी? कामिल कर देगी। अब आइए, belief in the heart. The heart is the core and foundation of Iman. The heart must be sound and correct for all else to be the same. Prophet Muhammad ﷺ said, "Indeed, in the body is a piece of flesh such that if it is good, all the rest of the body will be good. Whereas if it is corrupted,
all the rest of the body will be corrupted. Indeed, that piece is qalb. वो टुकड़ा क्या है, वो लोथरा क्या है, वो दिल है. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते कि जिस्म में एक हिस्सा है, अगर वो सेहतमंद है, पूरा गोया पूरा जिस्म सेहतमंद है. अगर वो सड़ गया, पूरा जिस्म सड़ जाएगा. वो क्या है, वो दिल है. One of the One of the aspects of this is what scholars call a statement of the heart. This includes recognition, knowledge, and affirmation. The second facet is what is termed action of the heart. These include commitment, voluntary submission, and acceptance. तो अब हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि ईमान के अलग अलग पहलू हैं. ठीक है. और उस एक पहलू क्या है, ईमान का दिल में होना. The second facet is what is termed as action of the heart. तो पहला हिस्सा क्या था, दिल का ईमान आना. दूसरा क्या है, अब उसको अमाल पे लाना, अमल पे लेके आना, इनैक्ट करना उसको. This include commitment. ये आपको एक पुख्तगी से अपने ईमान को, अपनी जुबान को, अपने दिमाग को चलाना है. ये नहीं कि हम डोल रहे हैं, इस पल हम कुछ कहें, उस पल हम कुछ कहें, इस पल हम ऐसे बने, इस पल हम वैसे बने. जुबान में कोई ठहराव नहीं, दिल में कोई ठहराव नहीं, एक्शंस में कोई जो है ठहराव नहीं. बिल्कुल हल्के फुल्के खोखले इंसान. जुबान से बड़ी बड़ी बातें करना, जब अमल पे आना बिल्कुल जीरो हो जाना. जुबान से बहुत बड़ी बड़ी बातें को जताना, दिखाना, मगर जब कुछ कहा जाए तो बिल्कुल जो है पीछे हट जाना. तो ये चीजें क्या हैं, ये चीजें दिखाती कि इंसान हर हाल से खोखला है. क्योंकि एक मजबूत इंसान अपने कमिटमेंट को कायम रखेगा, अपने सबमिशन को कायम रखेगा, और हर चीज को एक्सेप्ट करेगा जो जायज होगा, और जो गलत होगा उसको वो रफा दफा कर देगा. Other important elements include love of Allah Ta'ala, fear of Allah Ta'ala, trust in Allah Ta'ala, hope in Allah Ta'ala. 5 चीजें. The other elements include what element? Elements of Iman in heart. क्या है? हुब्ब अल्लाह, अल्लाह ताला की मोहब्बत. खशिया, अल्लाह ताला से एक अल्लाह ताला की एक अजमत को देख के जो है, जो इंसान की जो कैफियत होती है. खशियतुल्लाह, अल्लाह ताला का खशिया, खौफ लाना. अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करना, यकीन करना, और अल्लाह ताला से उम्मीदगार होना, उम्मीद रखना अल्लाह ताला से. तो ये 5 चीजें क्या है, ये भी दिखाती कि इंसान के दिल में ईमान है. उसके दिल में ईमान है. अपने रब से मोहब्बत करेगा और नेकी के काम करेगा. अपने अल्लाह ताला के उसकी जो है दिल में एक इज्जत और एहतराम होगा, तो वो कभी अपने नेकी को करने से पीछे नहीं हटेगा. अगर उसके दिल में खौफ होगा, अपने अपने गुनाहों से रोकेगा. अगर कोई सिचुएशन खराब होगा तो अपने रब पे यकीन करेगा. और अगर कोई चीज उसके लिए बिल्कुल एक चीज होपलेस दिख रही, तो वहां पे वो क्या लाएगा, अल्लाह ताला के ऊपर बेइंतहा उम्मीद बांधेगा वो. तो ये क्या है, ये ईमान की अलानियत है इंसान के लिए, एक मोमिन के लिए. Without these necessary conditions of faith, a person cannot honestly claim to be a mu'min. तो अगर हमारे पास ये facets नहीं हैं, तो इंसान एक मोमिन की कैटेगरी में नहीं उतर सकता है. Stating the profession of faith and belief in Allah Azza wa Jal and the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam are not sufficient for complete faith. बस ये कहते हैं ना कि हाँ, हम अमनतु बिल्लाहि व रसूली, ये हमारे लिए काफी नहीं. कितने लोग कहते हैं कि हम तो दिल की नमाज पढ़ते हैं, हमें तो जो है बज़ाहिर करने की जरूरत नहीं, हम हमने तो कलमा पढ़ लिया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं आगे. तो ऐसे लोग क्या है, ऐसे लोग जो है दीन की आड़ में क्या कर रहे हैं, अपने दीन के अरकान को नजरअंदाज कर रहे हैं, अपने रुकन को जो है क्या कर रहे हैं, उससे पीछे भाग रहे हैं. कितने लोग कहते हैं अरे अल्लाह ताला बड़े रहीम है, अल्लाह ताला बड़े करीम है, अल्लाह ताला माफ करने वाले, इसलिए नमाज छोड़ देते हैं, नेकी छोड़ देते हैं, अच्छाई छोड़ देते हैं, कुरान शरीफ को छोड़ देते हैं, अपने आप को तमाम जो है ऐसे कामों पे जो है मुब्तला कर देते हैं जो उनके दीन से जो है सही नहीं है. ये वो लोग हैं जो दीन की आड़ में किसको धोखा दे रहे हैं, खुद अल्लाह ताला को नहीं, मोमिनों को नहीं, मगर किसको धोखा दे रहे हैं ये लोग, अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं. जैसे हमने पढ़ा ना कि ये वो हैं युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून. They think to deceive Allah Ta'ala and those who believe, while they only deceive themselves and perceive it not. तो ये वो लोग हैं कि जो लोग अल्लाह ताला की बात को ना मान के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पे ना चल के, ये क्या कर रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं अल्लाह ताला और नेक मोमिनों को नहीं, बल्कि जो ये गलत काम कर रहे हैं उनको धोखा दे रहे हैं. Belief in the heart is the most essential component of Iman. Since it is in the influential foundation for the other elements to develop true Iman and to protect it, these components must be given their necessary attention.
ये बहुत ज़रूरी कि अपने ईमान को आप जो है हर हाल से जो है कामिल करिए, और उसको कामिल करने के लिए अपनी बुनियाद को मजबूत कीजिए। और जब बुनियाद मजबूत होगी तो हर चीज़, आपके अमाल भी क्या होंगे, काबिल कबूल होंगे। A true mu'min must recognize, desire and love the truth. एक सच्चा मोमिन बंदा हमेशा हक को पहचानेगा, हक की चाहत रखेगा, हक से मोहब्बत करेगा, वो कभी हक से पीछे नहीं हटेगा। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। तो एक मोमिन कौन है? इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। हमेशा सच्चाई को अपनाएगा। एंड हैव हेट फॉर फॉल्सहुड एंड डिसबिलीफ। उसको झूठ से और कुफर से नफरत होगी। ये क्या है? ये हलवातुल ईमान है। जिसके अंदर ईमान की मिठास आ जाती है, वो कुफर से नफरत करता है और वो झूठ से नफरत करता है। She or he must love Allah Ta'ala and put his or her trust, hope and fear in him alone. और जो इंसान अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखता है, वो हर तरीके से अपने रब से बाउम्मीद रहता है, तवक्कुल रहता है और अल्लाह ताला के लिए हर वो काम करने के लिए आगे बढ़ता है जो अल्लाह ताला को पसंदीदा है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बका। प्रोफेशन बाय द टंग, व्हाट डज इट मीन? जो जो सेकंड स्टेप जो बताया जा रहा है यहाँ पे, पहला क्या था? बिलीफ इन द हार्ट, दूसरा प्रोफेशन बाय द टंग इन वन स्टेटमेंट। What does this mean? The second component of Iman is profession of faith by the tongue, a statement testifying to the truthfulness of his or her belief. This is the testimony. This is the testimony I bear. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Which is a person proclaims to become a Muslim and which repeated each day in 5 daily prayers. This statement is not only words but a commitment to the religion of Islam with the intention of following its requirements and obligations. तो हम जो अपनी नमाज में बैठ के तशहद में पढ़ते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुर रसूल, तो ये सिर्फ हमारी बकौली नहीं है, हम इसको अपने अमल में, अपने अमाल में, अपने रुकन में भी इसको हम ज़ाहिर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इबादत के तरीके से। If a person believes in his or her heart but does not state this belief verbally, although he or she has the ability to do so, then she or he may not be considered to be a believer. She or he would not be treated as such in this life or in the hereafter. The verbal profession of faith is an essential It's an essential part of our Islam and of our deen. तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, अपने ईमान को जो है और अपने शहादत को हम दिखाएं. Essential aspect for this reason. A person who has the ability to make the statement but does not do so in it is considered a disbeliever. याद रखिएगा, हमें अपनी नमाज में कहना है तशहुद में अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह. जब अजान होती है इसमें जो है शहादत पढ़ी जाती है. जब वजू करके आते तब हम कहते हैं. कितने औकात पे हम इसको जो है बार बार रिन्यू करते हैं अपनी जुबान से, बुलंद आवाज से. तो ये बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, अपने शहादत कलमात को हम वक्तन वक्तन क्या करते हैं, उसको हम अब बकौल उसको हम बज़ाहिर करें. और जो इंसान नहीं करता है वो एक तरीके से कुफर की तरफ जा रहा होता है. Those who fear for their lives or are forced to keep silent would not fall into this category. कुछ लोग होते हैं जो किसी मौके के तहत, किसी मौके की नज़ाकत होती है, कोई मसले हो जाते हैं, कोई मुसीबत आ जाती है, वहां पे अगर वो बंदा ना कहे तो उसमें कोई हर्ज नहीं, मगर उसके अगर दिल में ईमान है तो उसके लिए काफी है. For the statement to be sound, it must be accompanied by sincerity, correct belief in Allah subhanahu wa ta'ala, and abandonment of any form of associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala and implementation of laws of Islam. तो अगर आप चाहती कि आपका ईमान सही सलामत रहे, हर चीज़ सही रहे, तो आपका सच्चा इखलास होना चाहिए, आपका ईमान बकामिल होना चाहिए, अल्लाह ताला के ऊपर सही अकीदा होना चाहिए. आपको हर शिर्क से, हर किस्म के शिर्क अकबर, असगर और शिर्क खफी से दूर होना चाहिए. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, अल्लाह ताला की जो भी अहकामात हैं, जो भी शरीयतन जो अल्लाह ताला ने बताई, इस शरीयत को हम उसको हम सही तरीके से फॉलो करें. In essence, belief
in the heart must be present for profession of faith to be complete and honest. The hypocrites are those who make the profession and pretend to be Muslim, but the action of the heart are not present. कितने मुनाफिक होते जो जो जिनके दिल में ईमान नहीं होता, उनके दिल में जो है दरगाह परस्ती होती है, मज़ार परस्ती होती है, आमिलों के पास जाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह बुत परस्ती होती है, हराम हराम चीजें होती हैं, मगर बाज़ाहिर तौर से वो मीठी मीठी बात करते हैं, अरे आप नमाज पढ़ती हैं, मैं नमाज पढ़ना बहुत पसंद है, हमें स्कार्फ पहनना बहुत पसंद है, हमें रोजा रखना बहुत पसंद है, अरे आप रोजा कैसे रखती हैं, मगर दिल में क्या है, निफाक है, दिल में मुनाफिकत है, मगर जुबान पे क्या दिखा रहे हैं, दीन की बात करके आपको अपनी तरफ माइल करना, क्योंकि दे वांट सम काइंड ऑफ बेनिफिट फ्रॉम यू और दे वांट टू कॉज सम हार्म टू यू। ये भी हमारे लिए समझना बहुत जरूरी कि सामने वाले के दिल में कितनी हकीकत है और कितनी जो है गलत है, गलत बात है। किसी कैसे आती है शुहूर, ये शुहूर इंसान को ईमान से आती है। तो द hypocrites are those who make the profession and pretend to be, but actions of the heart are not present. Performance of deeds as a natural extension, the level of iman in the heart will be reflected in the behavior of an individual. याद रखिएगा, जितना ईमान है उतना अमाल होगा। अगर आपका ईमान मजबूत है तो आपका अमाल मजबूत होगा, अगर ईमान डाउन है तो आपके अमाल भी डाउन होंगे। A heart filled with Iman, trust, hope, and fear in Allah Ta'ala will lead the body to perform acts of obedience and to avoid forbidden or even doubtful actions. जिसके दिल में ईमान मजबूत होगा, यकीन मजबूत होगा, तकवा मजबूत होगा, वो इंसान अल्लाह ताला की इताअत के तौर पे हर गलत काम से परहेज करेगा, गुमान। Therefore, deeds are another fundamental component of Iman. There is also reciprocal relationship wherein acts of obedience to Allah Ta'ala will increase the inner faith of a person, whereas acts of disobedience will decrease the faith. तो जितना ईमान होगा उतना आपके अमाल बढ़ते जाएंगे, जितना उसके अंदर कुफ्र, नाफरमानी, झूठ, फरेबी और नमाज को छोड़ना, गलत काम, गलत हरकतों में, आदतों में जाना, उतनी उसकी ईमान की कमजोरी होती जाएगी। अल्लाह ताला हम सबकी ईमान को बचाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यर्तदु व नईमन ला